Hi, good morning, my dear student. Today we are going to read your chapter 4 and discussing about Saivism. In my previous video, I have discussed about Vaishnavism, where we read about the practices of Vaishnavism, about the short history of the Vaishnavism, what is Bhakti, what is incarnation, and their practices also. We will discuss also the archaeological findings of the history of Vaishnavism, which proved that it was widely spread in India and beyond the India also. We have read the Heliodorus. We have also read about that the Megvarman. And now we are going to discuss about Saivism. Many which are contained in the Puranas complained by Brahmins, compiled by Brahmins by about the middle of the first millennium CE. पुरानास जो फर्स्ट मिलेनियम सी के आसपास लिखे गए 1000 वर्ष के आसपास जो इनका कंपाइलेशन कार्य किया गया, वहाँ पे कुछ धर्मों के बारे में बात की गई और इन्हीं धर्मों में जो वैष्णविज्म और शैविज्म आपके सिलेबस में दिया गया है उन चीज़ों पे डिस्कस हम कर रहे हैं. अगर आप यहाँ से देखें कि सम ऑफ दीज वर, मैं थोड़ा और पहले से चल रहा हूँ इस टॉपिक को, आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी, जोड़ने में मुझे आसान होगा. हमने पढ़ा था द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज़्म और हमने उसमें वैष्णविज्म के बारे में पढ़ा था. फिर भी मैं वैष्णविज्म को इसमें अगेन रीड कर रहा हूँ, देखिएगा आप लोग, और फिर हम चैप्टर इस टॉपिक को शुरू करेंगे शैविज्म से. एक्चुअली दोनों पॉइंट्स को एक ही पैराग्राफ में दिया हुआ है, इसलिए मुझे दोनों को एक साथ एक्सप्लेन करना पड़ रहा है. It is all helpless that both points given in one paragraph, so that's why I have to explain again the Vaishnavism, and then after we will discuss about Shaivism. In the case of Vaishnavism cult, developed around the various avatars, incarnations of the deity, 10 avatars were recognized within the traditions. These were formed the deity was believed to have assumed in order to save the world. However, whenever it was threatened by disorder and destructions because of the dominance of evil forces, it is likely that different avatars and popular in different parts of the country. Recognizing each of these local deities as a form of Vishnu was one of the creating a more unified religious tradition. We have discussed all these points. असत्य पे सत्य की विजय, पापियों का विनाश के लिए भगवान का अवतार लेना, ये इनकारनेशन का मेन एम था. इसीलिए वैष्णविज्म में हमें इनकारनेशन दिखते हैं. मैंने 39 इनकारनेशन की बात की, मैंने कामर कोश में 39 अवतार की बात की है, मत्स्य अवतार में 10 ऑथेंटिक इनकारनेशन की बात की गई, जिसकी काउंटिंग मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराई. कहता है कि सम ऑफ दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स एज अदर डिटीज़. इनके अलावा भी कुछ स्कल्पचर में अन्य दूसरे देवताओं का भी उल्लेख है, उनको एक्सप्रेस किया गया है स्कल्पचर में, उनके सिंबल के रूप में, उनके वीपन्स के आधार पे, उनके ऑर्नामेंट्स के आधार पे, और उन सारे साइन, उन सारे मोटिव्स जो उस धर्म से रिलेटेड थे, रिलीजियस से रिलेटेड थे, उन्हें भी स्कल्पचर में स्थान दिया गया. जो अन्य डिटीज़ हैं उनके बारे में कहता है. शिवा for instance was symbolized by the linga, although he was occasionally represented in human form too. All such representation depicted in complex set of the ideas about the deities and their attributes through symbol such as a headdress, ornaments, and ayuds weapon are auspicious objects that deity hold in their hands and are the seated etc. To understand
the meaning of the sculpture, historians have to be familiar with the stories behind them, many of which contained in Purans compiled by Brahmins by about the middle of the first millennium CE. They contained much that had been composed and had been the circulation for centuries, including stories about gods and goddesses. Generally, they were written in simple Sanskrit versas and were meant to be read aloud to everybody, including women and Sudras who did not have access to Vedic learning. It's very interesting. I have already taught you about that कि अब समय शुरू हो गया था जब शूद्रों को, महिलाओं को और लोअर क्लास के लोगों को भी पूजा करने की अनुमति दे दी गई, और वो इन धर्मों के आने से when the Vaishnavism and Shaivism introduced in the Indian continents, it gives us right. It gives the right for Sudras that they can worship without any hesitation, without any hindrance. No one foundation on them to worship Lord Shiva and Lord Vishnu. That is the change, or we can say that that is the effect of Buddhism on the Brahmanical sects. So that's why they emerged of two sects, Buddhism and Jainism. Much of what is contained in Purans evolved through the interactions amongst people, priest, merchant, and ordinary man and woman who traveled from place to place, sharing ideas and beliefs. We know, for instance, the Vasudev Krishna was an important deity in the Mathura region. Over centuries, his worship spread to other part of the centuries as well. मैंने आपको I have already informed you in my previous video that during that time the Lord Vasudev deities, he was worshipped by everyone, upper class, lower class, upper caste, lower caste, powerful king and less powerful king. Everyone have right to worship Krishna. Even their worship started in Mathura first time, but it was widely spread in whole Indian continent after some time. Here we are going to read about Shaivism. हमने पढ़ा, हमने देखा कि शैविज्म के विकास के बाद किस तरीके से वैष्णविज्म की बात हुई, वैष्णविज्म के विकास और शैविज्म के विकास की जो संकल्पना दिखाई दी। हमने देखा कि किस तरीके से वैष्णववाद में अवतारों की इर्द गिर्द पूजा पद्धतियाँ विकसित हुई और इस परंपरा में 10 अवतारों की कल्पना की गई और माना गया कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते दुनिया में अव्यवस्था का नाश की स्थिति आ जाती थी, और तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे, और ये अलग अलग रूप ही वैष्णविज्म के अवतारवाद कहे गए। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा का निर्माण एक महत्वपूर्ण तरीका हो गया। निश्चित रूप से कई स्थानीय देवता रहे होंगे जिनको एक मर्ज कर दिया गया होगा एक विष्णु के रूप में। स्थानीय देवता, लोकल किंग्स, लोकल डिटीज, और फिर उनका इमरजेंस इन वन डिटीज क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या प्रभाव पड़ा समाज में यूनिटी को दिखाने के लिए, और फिर उससे एक नया सेक्ट डेवलप हुआ था, वो वैष्णविज्म था। देवताओं को विष्णु मान लेना और धार्मिक परंपरा का एक निर्माण हो गया, और फिर इसके बाद हमें दिखाई देता है इन अवतारों को मूर्तियों के रूप में कई जगह दिखाया गया। अन्य देवताओं की और भी मूर्तियां बनी जिसमें शिव के प्रतीक के रूप में दिखाया गया। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणा, मिक्सचर जो बिलीव्स थी उन पे बेस्ड थी। इनकी खूबियाँ, उनके प्रतीक,
उनके वस्त्र, आभूषण, उनके वीपन्स जो वो हाथ में लेते थे, ये सभी एक ऑस्पिशियस सिंबल के रूप में एक्सेप्ट किए गए। स्कल्पचर में उनके बैठने की शैली से इंगित किया जाता था कि कौन कौन सा भगवान है और किस शैली को, किस रूप को वो एक्सप्रेस कर रहा है। स्कल्पचर में इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया गया। वास्तुकला में इन चीज़ों को बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से देखा गया। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों ने इनसे जुड़ी हुई कहानियों को समझना प्रारंभ किया और तब उन्हें इन कहानियों के मूल भावना का ज्ञान हुआ। कई कहानियां तो 1000 साल पहले फर्स्ट मिलेनियम बीसी में लिखी गई। ये सारी कहानियां जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखी जाती थी पुराणों में पाई जाती है। बहुत से किस्से ऐसे हैं, बहुत सी कहानियां ऐसी हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद, उनका लेखन शैली कंप्लीट होने के बाद बार बार सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं को भी कहानियों के एक पात्र के रूप में दिखाया गया है। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था और इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था। जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने और सुनने की अनुमति नहीं थी, वो पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों को सुनने का अधिकार दिया गया इन लोगों को। अपर क्लास की जगह अब लोअर क्लास के लोग, लोअर कास्ट के लोग या डिस्क्रिमिनेटेड पीपुल पुराण सुन करके धार्मिक अपनी उत्कंठा को शांत कर सकते थे, अपनी क्यूरियोसिटी को मिटा सकते थे। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुजारी, व्यापारी, सामान्य स्त्री पुरुष, एक से एक समाज का प्रत्येक व्यक्ति इससे जुड़ा था। इन कहानियों का विस्तार कैसे हुआ, ये कहानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंची, ये जो विश्वास था, ये जो मत थे, ये जो रिलीजियस फेथ थे उनके, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचे। आप कल्पना करिए, आप सोचिए, आपको स्वतः इसकी जानकारी हो जाएगी। ये आपसे मेल मिलाप से पहुंचे होंगे, जिसमें पुजारियों का, व्यापारियों का, सामान्य स्त्री पुरुष का बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा होगा। उन लोगों का और ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहा होगा जो एक जगह से दूसरी जगह तक यात्रा करते थे, जाते थे, अपने विश्वास, अपनी मान्यताओं, अपनी अवधारणाओं का एक दूसरे से आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे को सुनाते थे अपनी बातें। जैसे हम ये जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा के इलाके में पैदा हुए, मथुरा रीजन में पैदा हुए, लेकिन कई शताब्दियों के दौरान कृष्ण की पूजा पूरे देश में होने लगी, इंडियन कॉन्टिनेंट्स में होने लगी। कैसे हुआ होगा ये सब? निश्चित रूप से ये मान्यताएं, ये धार्मिक परंपराएं, ये विश्वास एक जगह से दूसरी जगह पहुंची होगी, लोगों ने अपने विश्वासों को एक्सप्रेस किया होगा और इस तरीके से धर्म दूर तक फैले हुए होंगे। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्कल्पचर, व्हाट आई एक्सप्लेन यू कि हिस्टोरियंस को उन चीज़ों को समझना पड़ा होगा कि इस धर्म के प्रतीक चिन्हों के रूप में क्या क्या है। व्हाट इज द रिलीजियस सिंबल विच इज यूज्ड इन स्कल्पचर, और फिर हाउ कैन और बाय विच वे दिस स्टोरी वाइड स्प्रेड इन होल इंडियन कॉन्टिनेंट्स, who played important role in expansion of these stories. So no doubt to say that the priest, common people, traders, they played very important role to widespread. We have finest example about Krishna. We have finest example about Lord Shiva also. Lord Shiva worshipped northern part as well as southern part. Both places they were. He is very famous deity. I think
having read this paragraph, you can understand about that, their meanings, their sculptures. My dear student, we have to think, we have to know, we have to familiar with the Saivism also. In my previous video, I have explained about Vaishnavism. In this video, I am going to explain about that history of Saivism. This history is what I think that it is so early, because everywhere in the worldwide level we have seen Shiva like deities worshipped by the people. In India also, there are the various archaeological evidences behalf of that. I am saying that the recent archaeological findings which is excavated in Syria, where the lingas found. What is the meaning of lingas, particular that region? We don't know, but we can interrelate with the Saivism. We can interrelate with the Shiva worship. Dear student, in the Indus Valley civilization, we have finest example about linga worship. There are the various linga shape excavated, found. We have also found a seal from Mohenjo-daro, particular region Mohenjo-daro. When Mohenjo-daro was excavated, a seal was found there. John Marshall interrelate that found the Lord Shiva, Proto Shiva. On that seal, a human seated on अपने पैरों को मोड़े हुए पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है. उसके चारों तरफ जानवर हैं. दाएं बाघ और भैंसा, इट मीन्स लायन और बफेलो है, और दाएं हाथी दिखाई दे रहा है. नीचे कुछ सर्प है, मुकुट पहना हुआ है, सिंह युक्त मुकुट. इसलिए इस सील को पशुपति शिव कहा गया, प्रोटो शिवा कहा गया. मार्शल ने इसका जो रिलेशन बनाया वो कहा प्रोटो शिवा है. इसके अलावा लिंगा के शेप के बहुत सारे आकृतियां हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिले. सो नो डाउट वी कैन इंटररिलेट ऑल दीज थिंग्स दैट द शैविज्म, शैव धर्म से संबंधित इसको हम कर सकते हैं. शिवलिंग की उपासना, शिवलिंग की पूजा कब शुरू की गई? हम इंडस वैली से इसको उसके वर्शिप, उसकी पूजा की हम सिर्फ इंटररिलेट कर सकते हैं. बट वी हैव नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बिहाफ ऑफ दैट वी कैन से दैट लिंगा was worshipped. That is a hypothesis in Indus Valley civilization. But we have archaeological evidence behalf of that. We can say that linga was worshipped first time in southern part of India, Renugunta. That was the place, Karnataka, where Shivling found Shivling ki puja. Guddi Malam, that is the place where worshipped in proper form. Guddi Malam में शिवलिंग, रेणुगुंटा के गुंडी मलम में शिव की पूजा के उस शिवलिंग की पूजा का प्रॉपर एविडेंस मिलता है. शैव धर्म कई सेक्टर में बटा. अर्लीस्ट शैविज्म पाशुपत. पाशुपत धर्म सबसे प्राचीन था. पाशुपत, पशु धनपति. इट मीन्स देयर आर टू वर्ड्स. पशु इट मीन्स एनिमल, पति इट मीन्स मास्टर. पशुपति दोनों का मास्टर. इन द शैविज्म फिलॉसफी, पशु इट मीन्स सोल एंड मास्टर इट मीन्स देयर डेटीज. ईश्वर, आत्मा और ईश्वर के बीच का संबंध. पशुपति. पाशुपत के बाद कालामुख, कापालिक और वीर शैव, लिंगायत. 4 पार्ट में शैव धर्म का बंटवारा हुआ, डिवाइडेशन हुआ. विचारों के आधार पे, अपने फेथ और बिलीफ के आधार पे देश के विभिन्न प्रांतों में पाशुपत संप्रदाय के
जनक माने गए लकुलिस जो गुजरात में पैदा हुए, वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय के जनक माने गए जंगम या वसवन्ना जो कर्नाटक में पैदा हुए, कापालिक या कालामुख यह अत्यंत एक्सट्रीमिस्ट सेक्ट था वैष्णविज्म का, जिसके आदि देव भैरव माने गए। तो इस तरीके से शिव की पूजा शुरू हुई, शिव अनादि देवता के रूप में, और शैविज्म का विकास डेवलपमेंट दिखाया। बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, बहुत सारे लेखों में शिव की उपासना से हर्षवर्धन अपने को माहेश्वर कहता है। कुशाणों ने अपने को सबसे पहले मुद्राओं पे शिव को स्थान दिया। ईश्वरस माहेश्वरस, सर्वलोकस ईश्वरस माहेश्वरस ये टाइटल धारण की उसने बिम कटपिसस ने अपनी मुद्राओं पे, अपने क्वाइंस पे। उसके बाद शैव धर्म की पूरी पूरी परंपरा हमें दिखाई देने लगती है। मयूर सलमान, विदिशा में, कन्नौज में और साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कांची का कैलाश मंदिर उसका फाइनेस्ट एग्जाम्पल दिखाई देता है। साउदर्न पार्ट के साथ साथ नॉर्दर्न पार्ट में राष्ट्रकूटों ने, जो लोग राष्ट्रकूटों ने शैव धर्म पे काफ़ी ध्यान दिया। पल्लवों ने भी इस पे कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया, चालुक्यों ने इस पे विस्तार से ध्यान दिया, और चोलों ने तो एक विशाल मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर जो शिव को समर्पित था, चोलों ने शिव पादशेखर की टाइटल धारण की। इस तरीके से हमने देखा कि शैविज्म भी भारत के सभी क्षेत्रों में एज वेल एक्सपेंड हो रहा था, फैल रहा था, स्ट्रेच हो रहा था, जैसे वैष्णविज्म फैला था। शैविज्म की प्राचीनता तो काफ़ी प्राचीन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। शिव भी ऋग्वेद में वर्णित देवता है, लेकिन शिव को ऋग्वेद में गौड़ देवता के रूप में माना गया है। एक उनकी इम्पोर्टेंस थोड़ी कम मानी गई है, लेकिन बाद में धीरे धीरे इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ने लगती है। गुप्ता पीरियड तक आते आते शिव को एक संहारक देवता की जगह एक कल्याणकारी देवता के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। स्कल्पचर्स में, सारनाथ म्यूजियम में अगर आप जाएं तो आपको शिव की एक प्रतिमा दिखेगी, करीब करीब 7 फुट ऊंची। ये ठीक वैसी ही जैसे आपने हिरण की 12 प्रतिमा वैष्णो की देखी। हाथ में उनके आयुध है और वो एक राक्षस का संहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब गुप्ता पीरियड तक आते आते वैष्णविज्म और शैविज्म की जो विचारधाराएं थी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, वो एक साथ मर्ज कर गए और एक नया सेक्ट चला। हरि हर की संकल्पना चली। हरि मीन्स विष्णु और हर मीन्स शिव। फिर यहाँ से समाज में लोगों के द्वारा इन दोनों को समान स्थान दिया गया। ये थी एक शॉर्ट हिस्ट्री शैविज्म की। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इनके निर्माण, इनके लिए जो स्कल्पचर्स बने, जो मंदिर बने, वो कैसे बन रहे हैं। मंदिर आर्किटेक्चर पे, टेम्पल आर्किटेक्चर पे बात करेंगे हम। अब बिल्डिंग टेम्पल्स पे बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट building temples. Around the time that the stupa at the site such as Sanchi were acquired, their present form, the first temple to house image of gods and goddess were also being built. The early temple was a small square room called Garbhagriha with a single doorway for the worshipper to enter and offer worship to the image. Gradually, a tall structure known as Shikhar was built over the central shrine. Temple walls were often decorated with sculpture. Later, temple became far more elaborated with assembly hall, huge walls and gateway and arrangement for supplying water. See also chapter 7.
One of the unique feature of early temple was that some of these were hollowed out huge rocks as the artificial caves. The tradition of building artificial cave was an old one. Some of the earliest of these were constructed in the 3rd century BC on the order of Asoka, the Renaissance of the belonging to the Ajivak sect. The traditions evolved through the various stages and they culminated much later in the 8th century. The carving out on entire temple, that of Kailasnath, name of the Shiva. A copper table inscriptions recorded that amazement of the cheap sculpture after they completed the temple at Ellora. Oh, how did I make it? खुद स्कल्पचर कह रहा है, जो बनाया वो कह रहा है कि भगवान कैसे मैंने बना दिया इसको इतना अच्छा. इट इज वेरी स्ट्रेंज. आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको कई सारे आर्किटेक्चर दिखाए. ये आपका आर्किटेक्चर है कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा का, महाराष्ट्र में राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया. कृष्ण फर्स्ट ने इसका निर्माण किया. फिर हमने देखा आपके सामने एंट्रेंस के बराबर की गुफाएं जो आजीविकों को अशोक ने दान दिया था. बराबर की गुफाओं में ये गुफा. फिर मैंने आपको दिखाया कि विष्णु द रीसेलिंग ऑन द सरपेंट शेषनाग स्कल्पचर फ्रॉम द देवगढ़ उत्तर प्रदेश दशावतार मंदिर पे 5th सेंचुरी सी का. और आपको एक टेम्पल का अर्लीस्ट फॉर्म दिखा मैंने देवगढ़ का ही. देवगढ़ के अंदर की ये देवगढ़ का टेम्पल और देवगढ़ के अंदर के टेम्पल के अंदर ये भगवान विष्णु ऐसे सोए हुए दिखाई दे रहे हैं. देवगढ़ का टेम्पल का ये आर्किटेक्चर जो इनिशियल फॉर्म ऑफ द टेम्पल है, इसके बारे में हमने यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर पर बात की. हमने टेम्पल आर्किटेक्चर पर सामान्य बात करते हुए कहा कि किस तरीके के मंदिर बनते थे, मंदिरों का निर्माण कैसे होता था. जिस समय सांची जैसी जगह में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए. शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था. इसमें एक दरवाजा होता था जिसमें उपासक मतलब वह व्यक्ति जो ईश्वर की पूजा करे, वर्शिपर, शुरू के मंदिर के चौकोर कमरे के रूप में थे जिन्हें गर्भगृह कहते थे. और उसमें एक दरवाजा होता था जिससे उपासक उसके अंदर प्रवेश कर सके, आसानी से जा सके पूजा करने के लिए. धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनने लगा. ये शिखर कहा गया. मंदिरों की दीवारों पर कई सारे वॉल पेंटिंग्स बनाए गए, भित्ति चित्र बनाए गए, उत्कीर्ण किए गए. बाद में मंदिरों के स्थापत्य कला में काफी विकास हुआ. अब मंदिरों के साथ साथ विशाल सभा स्थल, ऊंची दीवार, काउंसिल हॉल और टाल वॉल्स, जो उसके गेटवे थे वो भव्य बनाए जाने लगे, बड़े बनाए जाने लगे. और सबसे अच्छी बात, मंदिरों के साथ जल आपूर्ति व्यवस्था भी जोड़ दी गई, पानी की व्यवस्था जोड़ दी गई, पानी का उचित इंतजाम किया गया. शुरू के मंदिरों की खास बात ये थी कि उसमें कुछ पहाड़ियों को काट कर खोखला बनाकर कृत्रिम गुफाओं के रूप में ये मंदिर बनाए गए थे. आर्टिफिशियल टेम्पल, ये आर्टिफिशियल केव जो टेम्पल के रूप में थे, ये काफ़ी पुरानी परंपरा थी, कोई नई नहीं थी. ऐसी परंपरा हमें अशोक के काल में आजीविकों को दान दी गई गुफा के रूप में दिखाई देती है. सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं अशोक के समय 3rd सेंचुरी BC में बनी
जो आजीविकों को दिया गया था बराबर। और नागार्जुनी की गुफाओं पे अशोक ने सुदामा की गुफा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपड़ नामक गुफाएं बनवाई, जो शासनकाल के 11वें और 19वें वर्ष उसने बना करके आजीविकों को दान दिया। बाद में लोमस ऋषि की गुफा भी बनाई गई उसके पौत्र दशरथ के द्वारा। ये परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती है। 8वीं सदी तक आते आते कैलाशनाथ मंदिर का एक भव्य मंदिर हमें दिखाई देता है, जो पत्थरों को काट के बनाया गया। राष्ट्रकूटों ने बनवाया। कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण फर्स्ट ने इसका निर्माण कराया। और आश्चर्य की बात तो ये था कि जिस स्कल्पचर ने इसको बनाया था, जिस व्यक्ति ने इसे बनाया, जिस व्यक्तियों के समूह ने इसे बनाया, उन्होंने बनाने के बाद आश्चर्य व्यक्त किया, हे भगवान, इतना सुंदर मंदिर हमने कैसे बना दिया। आप खुद इस चीज़ को देखिए। आप इन चीज़ों को देखने के बाद इस जो मैं कह रहा हूँ उसे आप समझ जाएंगे। इस मंदिर की जब आप जूम करके देखेंगे तो आपको इसकी दीवार पे, इसके पत्थर पे एक एक जगह दिखेगा। इसकी आश्चर्य बात यह है कि इस कैलाशनाथ का मंदिर एक आसम पत्थर से बनाया गया है। एक पहाड़ी को ऊपर से काटा गया है और ऊपर से काट के इसके लिए प्रॉपर कमरे, स्तंभ, पिलर, गर्भगृह, शिखर और इस पे तमाम सारी स्कल्पचर्स और पेंटिंग बना दिए गए। ये अपने में यूनिक थी। इनके अपने में इनकी विशेषताएं थी, जिनके आधार पे हम इनको समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, नागर, बेसर, द्रविड़, और फिर हम टेम्पल आर्किटेक्चर को फिर एक बार और अच्छे से अर्ली फॉर्म से लेके रिसेंट फॉर्म तक के टेम्पल को पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।